Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, बड़ी खुशी की बात है कि आज नवरात्र का प्रथम दिन है। हिंदू सनातनियों का नव वर्ष है, नव वर्ष का प्रथम दिन है और ऐसे शुभ दिन पर 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आज इस शुभ दिन पर हम अपने बच्चों को पहला सौगात अपने चैनल के माध्यम से दें और जिसमें हम आपको आपका पहला लेसन एनसीईआरटी 10th क्लास के एनसीईआरटी का जो पहला लेसन है बायोलॉजी का, वो है लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो इस लेसन को हम लोग शुरुआत करते हैं और यह आपको जो है समर्पित है। उम्मीद है आप इसको बेहतर ढंग से समझेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और परीक्षा में बेहतर करके आएंगे, जिसकी तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देना है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में एक और खासियत है, हमारे 10th क्लास में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्र हैं। तो मैं जो यहाँ पर वीडियो आपको लिए अपलोड कर रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक साथ होगा और साथ ही साथ हमारे इंग्लिश मीडियम के वे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में होते हुए भी थोड़ा सा पुअर होंगे या उनको सेंटेंस का क्लियरेंस नहीं होगा, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ होने की वजह से उस इंग्लिश में यूज़ किए गए वर्ड्स और उसके सेंटेंस के एग्जैक्ट मीनिंग को समझ जाएंगे। एनसीईआरटी हमारी चाहती क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके डियर स्टूडेंट, life process means the process of life. Before revealing the mystery of process of life, first of all we have to know that what is life, and then after we shall try to know the process of life. Okay, then when we focus on this point, life, there are many philosophers and poets that has defined life, but science shows no, hypothetical definition is not needed, not permitted in science. Therefore there should be one experimental base on the fact whatever we reveals in science. Therefore when we focus on life to know what is life, it means life, on overall conclusion, the gist of life is this, that life is nothing but only a type of character, group of characters, because there are many characters of life. The living, yes, try to know, the living are the thing present on this earth, in this world, is known as living if they possess character of life. Okay, then now the second question is here, what is life? Life is group of characters. What type of group of characters? I shall explain you. Life is group of characters, and that characters are 11 characters, and all those 11 characters are mentioned in this way. That is L, P, G, M, M, S, C, R, E, M. These three words reveals the mystery of life. These three words explains the character of life. Okay, the first letter L refers to life cycle. Second letter P refers to protoplasm, means the thing that has protoplasm in it, that may be known as living. The thing that grows in their size, mass and volume internally, that is growth.
and that is also the character of life. Now here M for movement, the thing that internally shows movement, that possess character of life, that therefore that will be also known as living. Second M refers to metabolism, the thing on this word that inner molecules shows metabolic process to reproduce energy in the form of ATP. That's are also living due to possessing this character of metabolism. And next S for sensitivity, sense, the thing that's present in this word possess the property of to feel, to realize, sense against external stimulations as light, sound, touch, taste, smell, etc. etc. All those will also known as living due to possessing this feature. Second, next, C for cell. The thing that present in this word are made by cells that will known as livings due to possessing this character of cell. Next, R for respiration. The thing present in this word possesses the character of respiration, that will also known as living due to containing this property. Next, R for reproduction. The living that present in this word and also possess the property of reproduction, that will also known as livings due to possessing this character. And next, E for excretion. The livings, the things that are present in this word, and the excretory products throughout, excretory products through their body, organ or parts. That process known as excretion. And if the things, all the things that possess this property will also known as living due to possessing this character. And last, nutrition. The livings, the things present in this word that intakes nutrients from out sources of their body, through their body, due to gain their lost energy exhausted in their such type of activity. That process is known as the nutrition. And the living that possess the property of this nutrition will also known as what? Will also known as living due to possessing this character. Okay. Thus there are 11 types of features of life. The thing that possess all these features or any one of these features will known as living, because they possess character of life, therefore they will be known as living. Okay. And the thing that loses their living property, life property, after sometimes in their lifespan, then they will known as dead. Okay. And the thing that have never possessed any features of this property, that will known as non-living. Okay. Thus, dear students, now you can focus here that the main characteristic feature of life, the feature through which we can identify whether anything is living or non-living, that is movement. That is movement. Therefore, dear students, in this first segment, in this chapter, we have to talk about movements
That is the first and important identifying features of life process. Okay, then first focus on this first line of your NCRT of high school. Okay, what is written here? Life refers to those things that have visible or invisible movement in it. Okay, the things, life is there, life is there where is visible or invisible movement in that individual, in that particular thing. Okay, here invisible movements refers, what is the meaning of invisible movements? The invisible movement represents the movement of organic or inorganic molecular movement of cell. What do you mean by? You know, livings possess the property of cell, and also cell contains protoplasm in it, and the ingredients, organic or inorganic molecules present in protoplasm of cell has always movement, circulatory or vibratory motion in it. And this is the process of physics. When the molecules stops in the cytoplasm, it generates potential energy, and potential energy do not represent feature of life. But as the molecules starts to circulate or rotate or move into cytoplasm, this potential energy converts into kinetic energy, and this kinetic energy provides mechanical strength, force to that individual that individual structure, that is cell, to activate, to act like livings, to represent feature of life. Okay, now you can say there is one example, that inner molecules of virus. There is one example of virus. Inner molecule of virus in non-living medium show no any movement. When virus is present, what is virus? Virus is a type of small particle, DNA or RNA molecules covered by protein molecules. That is known as virus. The structure of the structure in which DNA or RNA, deoxyribose nucleic acid or ribose nucleic acid, are covered by protein molecules, that particular structure is known as virus. And this virus represents this, the DNA or RNA of this virus do not represent any type of movements in non-living medium. Okay, it means it acts as non-living in non-living medium. But when it enters into living medium, its DNA or RNA shows movement. Therefore, in living medium, that virus will known as a living, acts as a living. Resultantly, we can say, on overall, on conclusion, we can say virus is link between livings and non-living. Okay, and this whole concept results that molecular movement are needed for life. Molecular movement is needed for life. Yes, the first feature of life is movement, molecular movement of cytoplasmic contents. Okay, where there is cytoplasmic movement, that is movement. Dear student, you can also focus whenever you got events, your opportunity to identify anything that is living or not living. What you tried, what you watch in that thing, you always try to watch whether are there
movement in that thing in any parts or not? If there is no movement, you declares yes, it's non-living or it's dead, because livings, when movements stops in living, that will convert into dead, not living. So then when we have to identify whether this thing is living or dead, what we try to know? We try to know only we identify the movement in that particular thing. If there is movement, if you find movement in any part of that cell or thing, we declare yes, that is living. And if we don't find, we declare yes, it's now dead. In same way, you can say at your home, when any senior person, या any old person, या any person do not show any type of activity, do not show any type of movements in their body, we surprised to know whether now that person is dead or alive. For to identify this, we calls doctor, and doctor comes and with torch he opens the eyelids and watches the movement of pupils, iris of the eye. What we find? He tried to know whether are there on lightning the torch. If the iris is constricted, and after switching off the torch, when it dilates, it shows that if there is no movement in any part of the body, but there is movement in iris, it means now there is probability of the life. Life is present in that body, means that person is alive. But if there he did not find any type of movement in eyeballs, iris or pupil, then he declares yes, now he is no more, he is dead. Okay. Yes, dear students, thus this segment is for English medium students, but for Hindi medium students, तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जैव प्रक्रम जो है, जीवन का प्रक्रम, जीवन के प्रक्रम को जानने से पहले हम लोग जीवन को समझेंगे कि जीवन क्या होता है। तो बेटा, जीवन क्या होता है? जीवन के द्वारा किए गए कार्यकलाप जीवन के प्रक्रम कहलाते हैं। तो जीवन क्या है, सबसे पहले अगर ये जानना चाहें तो जीवन क्या है? जीवन एक प्रकार के लक्षणों का समूह है। इस धरती का कोई भी वस्तु जो जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करता है वो सजीव कहलाती है, जीवधारी कहलाती है। और जिसमें जीवन के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं उसको निर्जीव या मृत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मृत और निर्जीव में अंतर है। जो जीवित रह चुका है, अब जीवित रहने के कुछ समय पश्चात अगर वो अपने जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करना बंद कर देता है, तब उसको निर्जीव कहा जाएगा। निर्जीव नहीं, उसको मृत कहा जाएगा। लेकिन वे वस्तुएं जिसमें कभी भी जीवन के लक्षण प्रकट नहीं हुए, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम निर्जीव कहते हैं। ठीक है। तो जब जीवन के लक्षण को जानने की बात आती है तो हम क्या देते हैं? जीवन के लक्षण 11 होते हैं। और उस लक्षण को आसानी से समझने के लिए मैंने एक छोटी सी फार्मूला को बनाने का प्रयास किया है। वो है LPG क्रेन। ठीक है। जबकि क्रेन की स्पेलिंग गलत है, लेकिन हमारे फार्मूला के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ पर REN लिखा गया। ठीक है। तो LPG क्या है? L फॉर जीवन चक्र, P फॉर प्रोटोप्लाज्म, G फॉर वृद्धि, M फॉर उपापचय या गति, और दूसरे M का मतलब मोमेंट, ये मोमेंट हो गया, ये उपापचय मेटाबॉलिज्म हो गया। S माने संवेदना या सेंसिटिविटी हो गया। C का मतलब हुआ कोश की संरचना। R का मतलब हुआ श्वसन। इस R का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इसका E का मतलब हुआ उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। और इस N का मतलब हुआ न्यूट्रिशन या पोषण। तो ये जो जितने नाम हमने लिए, इन सभी नामों में से कोई भी नाम या सभी नाम इस धरती के जिस भी वस्तु में प्रकट होंगे उसको हम कहेंगे कि उसमें जीवन है, और जिसमें जीवन के लक्षण हैं उसी को हम जीवधारी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से
पूरे लक्षणों का अध्ययन करने के बाद अगर हम आपसे पूछें कि पूरे 11 लक्षणों में से वो कौन सा लक्षण है जो जीवन की पहचान के लिए परम आवश्यक होता है, कोई वस्तु सजीव है कि निर्जीव है कि मृत है, इसकी पहचान क्या करेंगे? उसकी पहचान के लिए जो सबसे प्रथम इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो होता है मोमेंट या गति। मोमेंट या गति, तो गति ही जीवन के लिए वह प्रथम लक्षण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु में जीवन, किसी वस्तु को ये कैटेगराइज करते हैं, विभेदित करते हैं कि यह सजीव है या निर्जीव है। बेटा ध्यान रखना, यदि इस धरती के किसी भी जीव में यदि गति है, अंगों में गति है, कोशिका के जीव द्रव्य में गति है, तो क्या होगा? वह सजीव कहलाएगा। लेकिन सजीव होने के बाद कुछ समय के पश्चात यदि उसमें गति बंद हो जाती है तो निर्जीव नहीं कहलाएगा, तब वो मृत कहलाएगा। लेकिन इस धरती की कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कभी भी सजीव के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, वो क्या होगा? वो निर्जीव कहलाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ? सजीव ही मृत होता है, लेकिन मृत कभी निर्जीव नहीं होता और सजीव कभी निर्जीव नहीं होता है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम गति पे ध्यान दें तो यहाँ पे जीवन के लक्षण में जो सबसे प्रथम लक्षण यहाँ प्रकट किया गया है वह है गति। गति से संबंधित क्या बात कही गई है? जीवन का अभिप्राय। यहाँ एक ही लक्षण को फोकस किया गया, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सभी लक्षणों के बारे में अभी यहाँ डिटेल करना संभव नहीं है। अगर सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो 11th में क्या पढ़ेंगे? इसलिए हाई स्कूल स्तर तक आपको यही जानना है कि जीवन का अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिसमें दृश्य या अदृश्य गति होती है। ठीक, इस धरती की कोई भी वस्तु जिसमें दिखाई पड़ने वाली गति है या न दिखाई पड़ने वाली गति है, वही क्या होगा? वही सजीव कहलाता है, क्योंकि यह जीवन के लक्षण उसी में है, इसलिए उसी को हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। अब यहाँ बात आई दिखाई पड़ने वाली और न दिखाई पड़ने वाली गति। तो दिखाई पड़ने वाली गति, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, हम भी एक वस्तु हैं। अभी क्या है? हाथ, पांव, मुंह, आंख, मुंह सब कुछ हिल रहा है, तो ठीक है। यह जो गति है, यह गति कैसी है? यह दिखाई पड़ने वाली गति है। आप कहेंगे सर तब तो यहाँ पर कभी कभी वो पहाड़ पर से ईंट पत्थर भी घिसकते हुए नीचे ढुलकते हुए आ जाते हैं, वो भी गति करते हैं, तो उनको उसमें भी कहा जाए गति है? नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, गति आंतरिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया गति, बाह्य बल के से उत्पन्न गति जो है वो गति में शामिल नहीं है। इंटरनल मूवमेंट, पेड़ पौधे भी गति करते हैं, लेकिन पानी में बहता हुआ पौधा वो स्वयं चल नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है? पानी की रफ्तार से, यानी पानी की धारा के कारण, पानी के धारा के बल के कारण उसमें गति है। इसलिए पौधे भी हम लोगों की तरह चल फिर नहीं सकते। यही जंतु और पौधों में अंतर है। जंतु क्या होते हैं? वो आंतरिक गति के द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन पौधे क्या करते हैं? केवल मूव करते हैं, वो अपना स्थान नहीं परिवर्तित करते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं? वो अपने बल से चलते ही नहीं, उनमें दृश्य अदृश्य गति होती ही नहीं, जो भी होता है वाह बल के कारण होता है। तो ठीक है, वाह अदृश्य गति क्या होती है? अदृश्य गति का मतलब कि जैसे कोई जीव चुपचाप लेटा हुआ है, हाथ पांव सब एकदम ढीला है, ठंडा पड़ा हुआ है, कोई गति नहीं है, लेकिन उसकी कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें गति होती है। वही गति क्या होता है? जीवन के लक्षण को प्रकट करती है। तो कोशिका अगर सजीव है तो कोशिका से निर्मित ऊतक भी सजीव होगा, ऊतक से निर्मित ऐसे सजीव ऊतक से निर्मित अंग भी सजीव होंगे, ऐसे अंग तंत्रों से बने हुए अंग शरीर भी सजीव होगा, और वह पूरा जीव कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस जीव की कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, उसमें उपस्थित कार्बनिक या अकार्बनिक अणुओं में गति हो रही होती है, यह क्या होता है? यह जीवन के लक्षण का अदृश्य गति है। ठीक है, अब आइए देखिए, अब वही चीज यहाँ लिख रहा है कि अदृश्य गति का अर्थ जीवधारियों की कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक या अकार्बनिक अणुओं में होने वाली गति से है। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, एक हम विषाणु का उदाहरण लेते हैं, विषाणु या वायरस। तो ध्यान रखिएगा, विषाणु क्या है? विषाणु कुछ नहीं, एक प्रकार का कार्बनिक अणु है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल RNA या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA। ठीक,
अब यह आरएनए या डीएनए क्या होता है, प्रोटीन कवच से घिरा होता है। तो वह आरएनए या डीएनए अणु जो प्रोटीन कवच से घिरा होता है उसी को ही विषाणु कहते हैं। ठीक है। कमाल की बात क्या होती है कि निर्जीव माध्यम में जो विषाणु है उसमें आंतरिक अणुओं में कोई गति नहीं होती है। यह विषाणु अगर निर्जीव माध्यम में उपस्थित है, निर्जीव माध्यम में, पानी में, अम्ल में, क्षार में, किसी द्रव में या वायुमंडल में अगर उपस्थित है तो वह निर्जीव माध्यम है। निर्जीव माध्यम में अगर उपस्थित होता है तो इस विषाणु के जो आरएनए या डीएनए है उनमें कोई गति नहीं होती है। इसलिए वहां पर यह विषाणु क्या करता है, मृत जैसा व्यवहार करता है। मृत नहीं, निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। निर्जीव जैसा व्यवहार करता है, इसलिए इसको निर्जीव कहा जाता है। लेकिन जब यही जीवाणु, यही विषाणु क्या करता है, सजीव माध्यम में, सजीव माध्यम मतलब किसी जीवधारी के प्रोटोप्लाज्म में अगर इसको एंट्री मिल जाए, प्रवेश कर जाए, तो इसी का डीएनए आरएनए गति करने लगता है, अर्थात सजीवों जैसा व्यवहार करने लगता है। तब यह डीएनए या विषाणु क्या होता है, ऐसे समय में इस विषाणु को हम क्या कहते हैं, सजीव कहने लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे तथ्य का निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह हुआ कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब इसके साथ साथ इस पूरे फैक्ट का एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य ये सामने आया, निष्कर्ष सामने आया कि जीवन के लिए आणविक गतियां आवश्यक हैं। जीवन तभी तक संभव है यदि उसकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जो अणु हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक, वो अणुगति को प्रदर्शित कर रहे हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछा जाए, आप जानना चाहेंगे, यही वो पॉइंट है जब आप ये भी समझ जाइए, कोई व्यक्ति मृत है या जिंदा, मृत है या सजीव है, मर चुका है या सजीव है, तो इस चीज की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक क्या होगा, क्या देखते हैं हम लोग, डॉक्टर लोग क्या देखते हैं, डॉक्टरों ने जब आइडेंटिफाई किया कि कोई फ्रेश डेड पर्सन की कोशिका का एनालिसिस किया और किसी सजीव व्यक्ति की कोशिका का एनालिसिस किया, तो एक ही चीज अंदर पाया, सारे मॉलिक्यूल, सारे कंटेंट्स, सब कुछ वही बना हुआ है, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस है। और टेम्परेचर का डिफरेंस इसलिए है कि जो मृत हो चुका है उसके साइटोप्लाज्म में जो कार्बनिक या अकार्बनिक अणु होते हैं उसमें मोमेंट नहीं होता, मोमेंट नहीं होता, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल चुकी होती है, इसलिए उनका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर मरने के बाद डाउन होने लगता है, क्योंकि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा थी जिसकी वजह से उनको हीट मिल रहा था वो नहीं मिलता है और वो मर जाते हैं। और सजीव में क्या होता है, जब तक इन अणुओं में गति बनी रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट रहती है, बॉडी में टेम्परेचर का लेवल मेंटेन रहता है और साइटोप्लाज्म को अपनी लाइफ प्रोसेस को एग्जिबिट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उचित तापक्रम मिलता रहता है और जीवन अपने लक्षण को प्रदर्शित करता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हिंदी मीडियम 10th क्लास के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इतना ही। कल हम लोग या अगले वीडियो में हम लोग इसी पॉइंट को से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के दिन को अच्छा बनाइए, अच्छी तरह से नोट बनाइए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।